4 readable, 5 perfectly readable. Okay, very good. ठीक है. And going to the next topic, readability skills are okay. Atul, can you tell me what are the rules of 4 Ws? How many are they? चारों W के क्या क्या मीनिंग है? What are the rules of 4 Ws? Okay, you only tell Taruna. Please go ahead. There are 4 W's for communication. W1 is for station called. ठीक है. W2, By meaning it is okay. By meaning it is okay. But if someone will ask for definition, then W1 stands for whom are you calling? whom are you Like that. calling? Very good. Okay. Hmm. W2, who are you? Okay. W3, what do you want? Why are you calling? Yeah, why are ठीक you है. calling? Hmm. And where are you? Very good. Where are you? This where is it representing the position where you are parked on or where you are traveling now? Is this indicating position or frequency? Okay. This W4 indicating the frequency, that by tuning which frequency you are contacting certain ATC office. Okay. Now I'll move to the next topic. Okay. But before going ahead, I'll tell you from tomorrow onwards, okay, whenever you will join from tomorrow onwards, keep your hypothetical call sign. Okay. I refrain to take name in the classroom because I am going to upload lectures over social media like YouTube. Okay. So I refrain to take the full name in the classroom. So I can call you by your call sign. तो आप अपने लिए कोई भी एक hypothetical call sign रख सकते हो. ठीक है. Whatever suits you, you can put call sign for you whenever you are available. Anything from your side. So tomorrow onwards, whenever you will join, keep one call sign for your name. Okay. And whenever we will do any communication practice or any kind of topic discussion, I will call you by this name only. ठीक है. Whatever you want to choose, keep yourself. तो कल से आपको कॉल साइन से बोला जाएगा, नॉट बाय योर नेम. ठीक है. Now, like till yesterday, we have seen rules of 4 Ws and readability scales, and we have also seen that how to raise a station, right? We have seen how to raise the station. So today we are going to practice some raising of a station question and then we'll move ahead. If I tell, ठीक है, सबसे पहले मैं एटीसी का हायरार्की एक बार फिर से लिखता हूं. Here, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो एटीसी में होता है दैट इज रेडियो, बट वो एचएफ कम्युनिकेशन पे कॉन्टेक्ट किया जाता है उसको. यू कैन नॉट कॉल ओवर वीएचएफ कम्युनिकेशन. ठीक है. एंड देयर आर 4 रेडियो कंट्रोलर्स एज पर आवर 4 रीजनल सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ठीक है. तो 4 रेडियो ऑफिस हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर एचएफ ओनली. नाउ मूविंग ओवर द वीएचएफ कम्युनिकेशंस, the biggest department over VHF communication is ACC, एरिया कंट्रोल सेंटर. ठीक है. और इनका कॉल साइन होता है कंट्रोल. सपोज आई वांट टू कॉल मुंबई एरिया कंट्रोल सेंटर, सो आई विल से मुंबई कंट्रोल. देन अप्रोच. ठीक है. एरोड्रोम अप्रोच कंट्रोल. ठीक है. और इनका कॉल साइन होता है अप्रोच. इफ आई से मुंबई अप्रोच, चेन्नई अप्रोच, दिल्ली अप्रोच, then this is the hierarchy in second, approach control. ठीक है. then it is third one, टावर. ठीक है. टावर, टावर का होता है एरोड्रोम कंट्रोल टावर. ठीक है. एरोड्रोम
कंट्रोल टावर, दिस टावर इज कंट्रोलिंग द एरोड्रोम, उनका शॉर्ट फॉर्म होता है TWR, ठीक है, और आप उसको टावर बोल सकते हो सिंपली, दिल्ली टावर, मुंबई टावर, कोलकाता टावर। एंड देन वी हैव SMC, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, ठीक है, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, जिसको बोला जाता है ग्राउंड, you can simply say Mumbai ground, Delhi ground, Chennai ground, like that. And there are apron controller, basically you won't find in the article कि apron controller से भी कोई सा स्टेशन एग्जिस्ट करता है, but in real life if you find, you can simply say Mumbai apron control या फिर Chennai apron control, like that. So there are 5 office hierarchy under VHF communication that we are going to use in daily life as well as in the examination. ठीक है? So if I say by saying any hypothetical call sign, आप लोग अपने मन से कोई भी अपना call sign रख लो, and if I say raise the station to Mumbai ground, then what could be your reply? Please give the reply. Raise the station to Mumbai ground. Go ahead. By using W1 and W2, you can raise the station. So if I say raise the station to Mumbai ground, what will be the call sign? How this call can go? कल मैंने बताया था लास्ट में. Try once. How to raise the station for Mumbai ground? Anyone? Mumbai ground, Victor Tango Alpha number kilo. Very good. It means you are raising the station to Mumbai ground and your call sign is Victor Tango Alpha number kilo. ठीक है. This is for everyone. ठीक है. Whoever are the candidates, I'll suggest to be interactive. अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रहोगे, I cannot continue further. ठीक है. आप इसको जैसे समझो, you need to be interactive. ठीक है. Odd and alternate case can be understandable, but generally you need to be interactive in the class. Otherwise this class cannot continue. ठीक है. It's not like कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसको रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को सर्व करूंगा. नो, ऐसा मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं है, वैसा मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा. So you need to be interactive always. ठीक है. Please don't refrain to answer in the classroom. आप इंटरेक्टिव रहोगे तभी मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है. अदरवाइज 2-3 दिन के बाद मैं क्लोज कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा. ठीक है. आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा. गलत सही दैट डजंट एवर मीन, बट ऐसे साइलेंट नहीं रह सकते आप क्लास में. ठीक है. आपको आंसर करना पड़ेगा. So if you are reaching the station to Mumbai ground, then you will say W1 means whom are you calling? आप किसको कॉल कर रहे हो? I am calling to Mumbai ground. Then W2, who are you? I am Victor Tango Alpha November Kilo. ठीक है. Now when Mumbai ground will reply, they'll also reply in the similar manner. Victor Tango Alpha November Kilo, ठीक है, Mumbai ground, like this. अब आप पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पे मुंबई लिखा, यहाँ पे VAB भी लिख दिया, यहाँ पे आपने ग्राउंड लिखा, यहाँ पे SMC लिखा. ठीक है. दिस इज द टॉपिक फॉर व्हाट आई हैड आस्क्ड यू टू रेज द स्टेशन. आप जब भी किसी भी ATC का कॉल साइन लिखते हो, सो वी हैव सर्टेन ऑप्शंस. आप चाहो तो पूरा उसको लिटरेचर के फॉर्मेट में लिख दो. ठीक है. मुंबई ग्राउंड, आप चाहो तो ऐसा लिख लो पूरा का पूरा, या फिर आप चाहो तो दूसरे शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हो, लाइक दिस, मुंबई, ठीक है, ग्राउंड, लाइक दिस. और यू कैन राइट इट एज मुंबई SMC. बोलना है ग्राउंड बट लिख सकते हो SMC, बिकॉज SMC इज ऑल्सो अ कॉल साइन फॉर ग्राउंड. और यू कैन राइट लाइक दिस, मुंबई है ना,
Over the chart you can see, I'll show you later, ठीक है, later on immediately. Over the chart you can see मुंबई स्टेशन का VOR कोड होता है, ठीक है। जैसे मान लो दिल्ली को कुछ लोग लिखते हैं ना DEL, बेंगलोर को लिखते हैं BLR, ठीक है, इस टाइप से। तो आप मुंबई को लिख सकते हो, मुंबई का कॉल साइन है BBB, इस टाइप से लिख सकते हो, मुंबई ग्राउंड। बोलना मुंबई ग्राउंड है, लिखने में आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो ताकि आपका टाइम सेविंग हो, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो VABB ग्राउंड। बोलना है आपको मुंबई ग्राउंड, लिख सकते हो आप VABB SMC। So these are the techniques what you can use while writing in the question paper to save your time, ठीक है, and to become fluent. Done? अब आप बोलोगे कि सर आपने ये जो BBB लिखा, ये VABB लिखा, ये क्या सारे एयरपोर्ट्स का मुझे रटना पड़ेगा या मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। सो नॉट टू वरीड, व्हेन यू लुक एट द चार्ट, ठीक है, when you look at the chart you will find that VOR codes are easily available. You can see, let me show you, here you can see the airport I had taken here is Mumbai, okay, and here you can see it is clearly mentioned BBB, ठीक है। आप देखो इधर, ठीक है, BBB लिखा है ना, मीन्स इट इज मुंबई। सो आप लिख सकते हो BBB एंड SMC एज अ ग्राउंड, ठीक है। VABB इज द इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर फॉर एयरपोर्ट, वी लर्न लेटर, ठीक है। कल से परसों तक में हम इस चीज को पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन राइट मुंबई एज VABB, दिल्ली एज VIDP, इस टाइप से VOMM फॉर चेन्नई, ठीक है। इसको बोला जाता है आईकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर। ये हम लोग कल से परसों तक में पढ़ेंगे, बट आप अभी तक के लिए बस इतना समझो कि देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट द नेम ऑफ ATCs. Is it clear to all? Shall we move ahead? Yes, no, anything? Guys, I need interaction. I told earlier. Otherwise, ऐसे क्लास में पढ़ाने में मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा. And I cannot continue further. Please answer either yes, no, anything. Give me feedback. नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या पढ़ाया, क्या समझा? Yeah, clear. Anyone have doubt? Someone was saying something. No. Likewise, only you need to be interactive, guys. Otherwise, I cannot continue. I'll be very honest in this case. If you want to be interactive, I cannot continue. I'll start within 2 or 3 days. ज़्यादा से ज़्यादा मैं बंद कर दूंगा. मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ इसे. ठीक है? This is not my style. Okay. So we have seen. Yes, anyone trying to say something? Okay. ठीक है. So we have seen so far how to raise the station. ठीक है? What are the rules of 4 Ws? ठीक है? How to raise the station. Raising a station का importance हम लोग बाद में देखने वाले हैं, but for now make it very clear. Whenever someone will say raise the station, simply tell W1 and W2. It means you are knocking the door of someone. ठीक है? Then we have seen the readability scales. If someone is at readability scale 1, 2, 3, you cannot continue with the communication. And if someone is at 4 or 5, you can continue with the communication. Okay? Now, whatever the things I had described till the time, okay, please make it by heart. Like आपको ये सारे topics exam में generally कोई नहीं पूछेगा कि readability scale क्या होते हैं, rules of 4W क्या है, how to raise the station, ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा. और इसका यूज भी आपको
मिनिमम्स पे देखने को मिलेगा कि आपको कहीं इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए यूज करना है। नहीं, आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा कि रीडेबिलिटी स्किल 3 का मतलब क्या होता है। बट दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है, कि अगर गलती से भी पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया, सपोज ही गॉट सर्टेन कंफ्यूजन और ही जस्ट वांट टू ट्विस्ट, तो उसने ऐसे ही वर्बली पूछ लिया कि रीडेबिलिटी स्किल 3 का मतलब क्या होता है, एंड इफ बाय एनी चांस अगर आप उसको आंसर नहीं कर पाए तो आपके पूरे करे कराए पे पानी फिर गया, ठीक है। उसी टाइम में आप उसके नजर में कल्प्रिट हो गए। ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, दीज आर द स्मॉल, वेरी स्मॉल टॉपिक्स। आपने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो इन योर एग्जामिनेशन, एंड doesn't matter how well you have narrated the answer in the examination, but if by any chance अगर आप इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के आंसर नहीं दे पाए, फिर वो आपको पास नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको बिल्कुल पास नहीं करेगा, क्योंकि आपके नजर में उसका इमेज पूरा, सॉरी, उसके नजर में आपका इमेज पूरा डाउन हो चुका है कि इसको इतना छोटा चीज पता नहीं है, बाकी का आंसर तो ये रट के ही आया होगा, ठीक है। दिस इज द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। whenever you perform anything, the first thing they are checking कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और यही सर्टेन चीजें होती हैं जो कि स्टूडेंट को पास करने से रोकती हैं एग्जाम में। और लोगों को लगता है कि कभी एग्जामिनर बदमाश है, कभी उनको लगता है कि मैंने 5 बार आरटी दे दिया, मेरा नहीं निकल रहा है, 6 बार दे दिया, मेरा नहीं निकल रहा है। नो, यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर प्लान। जो चीजें आपको पढ़नी है उसको समझ के जाना है, then you are able to clear even in very first attempt. Yeah, nobody stops you there. Okay, I have certain examples की about many tutor, कुछ tutors के बारे में भी, also कुछ instructors के बारे में, कि कुछ स्टूडेंट ने ऐसा मुझे ऐसा फीडबैक दिया है कि सर एग्जाम में अगर आप ये बोलोगे कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है तो आपको पास नहीं करते हैं, बट अगर आप ये बोलोगे कि मेरा दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है तो आपको पास कर देंगे। आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क्स, ठीक है, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये कितना काम करता है, बट इफ यू आस्क मी आई वोंट सजेस्ट यू फॉर दिस, ठीक है। आपको ऐसा चीट करके या फिर आपको क्या कहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके या उससे सिंपैथी लेके आप तो पास नहीं हो पाओगे, बिल्कुल नहीं। वो एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक करने के लिए बैठा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर तीसरी बार देने जा रहे हो तो आपके ऊपर वो तरस खा जाएगा कि अरे यार आप 3 बार आ गए, इतना मेहनत, चलो इस बार पास कर देता हूँ। नो, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, वेरी स्मॉल स्मॉल बेसिक थिंग्स, इफ यू लूज अटेंशन ओवर इट, आपको अगर ये सारी चीजें याद नहीं रह पाई तो आपका सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो इस चीजों को ध्यान में रखना। रूल्स ऑफ 4Ws एंड रीडेबिलिटी स्केल, दीज टू आर द टॉपिक्स जो कि जनरली ध्यान से उतर जाते हैं लोगों के। तो इस पे आप अपना कमांड मत खोना, कुछ नहीं है, बेसिक डिफिनेशन है, आपको बस बाय हार्ट याद करना है। मिस आउट करोगे, रिजल्ट विल बी एडवर्स, श्योरली। डन। Now we are going to have a look on our next topic, that is readability check, ठीक है। that is readability check। क्या होता है readability check? Whenever we are transmitting, ठीक है, then in RT we make sure that our voice is perfectly readable to the receiver. There should not be any confusion, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कहीं होटल में खाने के लिए गए, तो समटाइम इट हैपन्स कि जब आप फूड कंज्यूम करते हो तो आपसे जो होटल के शेफ होते हैं या जो भी वहाँ पे वेटर होता है, वो आपसे पूछ लेगा कि खाना कैसा बना था सर, और समटाइम्स वो नहीं पूछते हैं। तो कई बार जो यूजर्स होते हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाके मैनेजर को बताए कि फूड वाज रियली नाइस या फिर फूड अच्छा नहीं था। सिमिलरली इन रीडेबिलिटी चेक, इफ यू आर ट्रांसमिटिंग और अगर आपके वॉइस का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है,
तो रिसीवर एंड पे बैठा हुआ पर्सन आपको काउंटर रिप्लाई कर देगा कि आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है. However, it is our duty to ensure before transmitting whether we are readable clearly to the receiver or not. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ट्रांसमिशन से पहले ये इंश्योर करें कि हमारी बातों को रिसीवर अच्छे से सुन पा रहा है कि नहीं. However, अगर हम मिस कर जाते हैं तो रिसीवर हमको काउंटर रिप्लाई दे देगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से. ठीक है. सो बोथ वे इट वर्क्स. ये आपकी ड्यूटी है. अगर आप मिस आउट करते हो तो रिसीवर आपको याद दिला देगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से, फिर से बोलो. ठीक है. सो हाउ इट इज गोइंग, जस्ट हैव अ लुक. रीडेबिलिटी चेक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. क्या? सपोज आई वांट टू चेक रीडेबिलिटी. ठीक है. रीडेबिलिटी चेक में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अपने एयरक्राफ्ट के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वेदर इट इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट, सिंपली. ठीक है. ऐसा तो नहीं कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, लाइक दैट. सो व्हेनेवर वी आर चेकिंग रीडेबिलिटी वी आर यूजिंग सर्टेन फॉर्मेट. क्या? सपोज वी आर चेकिंग रीडेबिलिटी विथ मुंबई ग्राउंड, दैट इज आवर एटीसी. तो हमने लिखा या सॉरी हमने बोला इट इज अ ट्रांसमिशन. सो वी हैव टोल्ड Mumbai ground, Victor Tango Alpha November Kilo on 123.5. 123.5 suppose is the frequency of Mumbai ground. 12345 54321. How do you read? This is the standard format. हमने बोला मुंबई ग्राउंड को, तो हमने अपने कॉल में पहले मेंशन किया W1 मुंबई ग्राउंड. दिस इज विक्टर टेंगो अल्फा नवंबर किलो on 123.5, that is the frequency we are using. ठीक है. 12345 54321. How do you read? आप मुझे कैसे सुन पा रहे हो? ठीक है. अब इस चीज का अगर आप इन फील्ड कुछ एग्जांपल्स देखते होंगे तो वहां पे कुछ लोग अलग अलग टाइप से आंसर करते हैं. लाइक वो बोलेंगे मुंबई ग्राउंड, दिस इज विक्टर टेंगो अल्फा नंबर किलो, और यहां पे बोलेंगे हाउ डू यू रीड मी. लेकिन रेगुलेशन आपको ये परमिट नहीं करता है कि आप बोलो दिस इज विक्टर टेंगो अल्फा नंबर किलो इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस. और हाउ डू यू रीड मी, ये भी राइट प्रैक्टिस नहीं है. तो हाउ डू यू रीड मी, हाउ डू यू रीड अस, हाउ डू यू रीड दिस दैट, कुछ नहीं बोलना है. सिंपल 4 वर्ड. हाउ डू यू रीड, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. हाउ डू यू रीड, नहीं आगे पीछे मी लगाना है, नहीं हाउ आर यू लगाना है, कुछ नहीं. सिंपली हाउ डू यू रीड. आप इन जनरल सिविल में जो भी इसका यूज देखते हो, अगर आपके सीनियर्स या आपके कलीग्स इसका यूज करते हैं, वो गलत कर रहे हैं. ठीक है. बट बाय द प्रैक्टिस दैट इज कंटिन्यूअस, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है. बट दैट इज नॉट एक्यूरेट मैनर टू कॉल. आपको बोलना है हाउ डू यू रीड. कैसे इनएक्यूरेट है हम लोग अपकमिंग क्लासेस में आपको दिखाएंगे. ठीक है. आई विल डेफिनेटली शो यू इन अपकमिंग क्लास कि हाउ दे आर इनएक्यूरेट. तो आपको सिर्फ बोलना है हाउ डू यू रीड. डन. और यहां पे भी दिस इज विक्टर टेंगो अल्फा नवंबर किलो, दिस इज विक्टर टेंगो रोमियो सियरा माइक, इस टाइप की चीजों का यूज नहीं करना है. ओनली विक्टर टेंगो अल्फा नवंबर किलो. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस कॉल. हमारा मेन कंसर्न है इसमें. ठीक है. हमारा इसमें मेन कंसर्न है W1, W2, W3 एंड W4. अब आप यहां पे एक हमसे डाउट पूछ सकते हो कि सर W1, W2, W3, W4, इस कॉल में W4 W3 से पहले कैसे आ गया? ऑर्डर तो 3, 4 का होना चाहिए. Why W4 has been came first? So as per the rule, ठीक है, as per the rule, W3 and W4 can be interchanged wherever applicable as per suitability and better formatting of transmission.
मतलब ये कहा गया है कि W1, W2, 3, 4 ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऑर्डर नहीं है कि W1 के बाद W2 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए। ये कोई ऑर्डर नहीं है, बस आपके कॉल में ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हो विद एनी एटीसी, तो आप पूरा फॉर्मेट फॉलो करोगे। पहले W1, फिर W2, ठीक है, एंड फिर W4 का पहले यूज कर लेते हैं, देन W3। बट वेन एवर वी आर हैविंग फर्दर कम्युनिकेशन, ठीक है, एक बार इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद जब हम कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन में होते हैं, तो हर बार हम रूल्स ऑफ 4W का प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं, सीधा W3 और W2 का यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, ये कोई फिक्स्ड एंड फॉर्मेट ऑर्डर नहीं है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, नहीं। आपके कॉल में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कॉल टाइप। तो यहां पे जैसा हमने देखा, वी आर चेकिंग रीडेबिलिटी along with Mumbai ground for the first time. So we are using W1, that is Mumbai ground, Victor Tango Alpha November Kilo, and this is the frequency we are using to call Mumbai ground. अब आप बोलोगे कि सर ये फ्रीक्वेंसी आपको कहां से पता चलेगा? As I said earlier also, ठीक है, you can get it by the chart, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपका मुंबई का फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ना, 121.9er। यहाँ पे मैंने 123.5 लिखा है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पस। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मैं एक्यूरेट वही लिख रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, बट आपको रियल टाइम में फ्रीक्वेंसी मिलेंगे चार्ट के ऊपर। ये चार्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के साथ दिया जाता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, एंड फ्रेज यूज करना है, हाउ डू यू रीड, सिंपल। हाउ आर यू रीडिंग मी, हाउ डू यू रीडिंग, हाउ डू यू रीड मी, ये सब नहीं बोलना है, हाउ डू यू रीड। नाउ कम टू द टॉपिक कि सर ये 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ये क्या है? दिस इज ऑप्शनल एंड दीज आर द सर्टेन रैंडम नंबर्स। आप चाहो तो बोलो, चाहो तो नहीं बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कई बार गांव में या अपने होम टाउन के आसपास अगर कोई प्रोग्राम देखा होगा, ठीक है, कोई सा स्टेज शो देखा होगा, तो वहां पे बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग। दिस इज द सेम थिंग, these are the random numbers just to check the readability. Yes. Come in. Sir, your sound is not coming. Now am I audible? Yeah, you're audible now. ठीक है. So I was saying 1 2 3 4 5 and 5 4 3 2 1. That is just a random number. If you want, you can use it. If you don't want, leave it. Nobody bothered. तो आपको रीडेबिलिटी चेक करना है by saying W1, W2, W3 and W4. W4 को W3 से पहले लिखते हैं, ठीक है। So we have performed the readability check by using rules of 4 Ws.
देन व्हाट हैपन, अगर हमको उधर से रिप्लाई आएगा बाय द एटीसी, दे विल आल्सो यूज द सेम फॉर्मेट, Victor Tango Alpha November Kilo, because they are calling us. So as an ATC, whom they are calling? They are calling Victor Tango Alpha November Kilo. So W1. Then they will take their own call sign. Who are you? कौन है वो लोग? They are Mumbai ground. And they will say radio 5. और यहाँ पे ऑप्शन है, जब आप किसी को रीडेबिलिटी चेक देते हो ना, तब आप बोल सकते हो, आइदर आप बोल सकते हो रीड U5, आइदर आप बोल सकते हो रीडिंग U5. ठीक है, बोथ वे इट विल वर्क, ओनली इन द रेस्पॉन्स, नॉट इन द क्वेश्चन. ठीक है, यहां पे आपको बोलना है ओनली हाउ डू यू रीड, बट while giving response you can say reading U5, because you are answering in as present continuous tense कि सुन रहा हूं, बताओ. ठीक है, so in the response they have told read U5 or they have told reading U5. Now they may also ask one thing from you again. हो सकता है कि वो बोलेंगे कि आपकी आवाज तो मेरे तक ऑन अ स्केल ऑफ 5 आ रही है, बट मैं जो बोल रहा हूं उसको आप कैसे सुन रहे हो. सो इफ दे आस्क एडिशनली कि आपकी आवाज को तो मैंने ऑन अ स्केल ऑफ 5 सुना, बट वट एवर आई एम सेइंग, आर यू रीडिंग इट परफेक्टली और नॉट, तो आप भी उसके रिस्पॉन्स में बोल सकते हो रीडिंग U5 ऑन स्ट्रेंथ 5 विक्टर टेंगो अल्फा नंबर किलो. ठीक है, कि आई एम रीडिंग यू ऑन द स्केल ऑफ 5, आपकी आवाज मेरे तक ऑन अ स्ट्रेंथ ऑफ 5 पहुंच रही है. तो यहां पे आप देखो, यहां पे फिर अपना फॉर्मेट क्या हो गया, W3 और W2. मैं इसी की बात कर रहा था कि जब आप किसी एटीसी से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हो, देन यू विल फॉलो द रूल्स ऑफ 4W थॉरोली. ठीक है, जब कम्युनिकेशन आगे बढ़ गया, एक बार इंटरेक्शन पूरा हो गया, तो सीधे मुद्दा डिस्कस करेंगे, व्हाई आर यू कॉलिंग, और लास्ट में अपना कॉल साइन से कॉल को क्लोज कर देंगे. ठीक है, तो कोई भी इस चीज को लेके चिंता मत जताना बाद में, या कभी भी खुद भी सोच के मत घबराना कि हाउ W3 आर यूज्ड लेटर ऑन एंड W4 हैज बीन यूज्ड बिफोर W3. ये कैसे हो गया. होना तो ये चाहिए कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये अप डाउन कैसे हो गया. सो एज पर सुटेबिलिटी ऑफ योर आंसर यू कैन इंटरचेंज. ठीक है, बट फर्स्ट इंटरेक्शन में हमेशा W1, W2, W4 एंड W3 इस फॉर्मेट का यूज करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Clear. Okay. So now I'll give one more example apart from this slide to just show you how the call can be gone. I'm reaching the station to Bangalore Tower. ठीक है, this is Bangalore Tower. इसके पास हम एक readability check परफॉर्म करते हैं. So let's say our call sign is Tango Sierra Romeo. ठीक है, our call sign is Victor Tango Tango Sierra Romeo. So how we can say Bangalore Tower, you can observe my voice and writing. अभी मैं जो लिखूंगा ना, आप देखना कैसे सिंक में लिखता हूं, in a synchronized manner. Whatever I am saying and whatever I am writing, both actions are performed simultaneously. आगे पीछे नहीं है कुछ भी. तो आप भी अभी ऑब्जर्व करो, और जब कभी भी आंसर करोगे कोशिश करना इसी वे में आंसर करने की. बैंगलोर टावर, विक्टर टेंगो टेंगो सियरा रोमियो on 118.1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना स्लो आंसर करेंगे तो एग्जाम में तो छूट जाएगा. नहीं, जब आप लिखना और बोलना दोनों साथ साथ करोगे ना, आपका रेट ऑफ स्पीच स्लो हो ही जाएगा, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल. दैट इज बिल्कुल एक्सेप्टेबल. आप जनरल क्या कहते हैं सिनेरियो में, जब आप ओनली बोलते हो तो आप तेज बोलते हो,
लेकिन लिख लिख के बोलने में आपका रेट ऑफ स्पीच स्लो रहेगा, और स्लो बोल के ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आप जो भी आंसर बोलते हो ना पार्ट 1 में, ठीक है, अगर किसी ने एग्जाम पहले दिया होगा तो दे माइट हैव सीन, आप पार्ट 1 के आंसर में जो कुछ बोलते हो, आप अपने पेपर पे जो लिखा वो तो एक साथ है, ठीक है, आपकी राइटिंग अलग रख दी गई, आप जो बोलोगे उसको सुन सुन के आपका एग्जामिनर अपने नोटबुक में लिखेगा, तो अगर आप तेज बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा, या फिर आप जिस स्पीड से बोलोगे उस स्पीड से वो लिख नहीं पाएगा, तो ऐसे ही आपका नंबर काटेगा बैठ के, ठीक है। तो आपको अपने कंफर्टेबल स्पीड से बोलना है, नाइदर टू स्लो नॉर टू फास्ट, क्योंकि एग्जामिनर अपने नोटबुक में आपके बोले हुए चीजों को नोट करता है, और लास्ट में आपकी राइटिंग और जो उसने नोट किया इन दोनों को मैच करवाता है। अगर इसमें मिसमैच होता है, फटाफट नंबर काटेगा बिना कुछ सोचे। सपोज आपने 4 लाइन का आंसर दिया, लिखा हुआ है आपके कॉपी में 4 लाइन के आंसर लिखे हुए हैं 4 पैराग्राफ के, बट आपने बोले टोटल 6 पैराग्राफ, तो जैसे ही ये मिसमैच हुआ 2 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग 5 नंबर फटाक से काट लेगा वो, कि बेईमानी, बोले 6 लाइन लिखा 4 लाइन, ठीक है। तो जो बोलो वही लिखना है, इट मींस जो लिखा वही बोलना है, दोनों होना चाहिए, एंड एट अ गुड रेट ऑफ स्पीच, नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली, ठीक है, डेली आपसे कॉल का प्रैक्टिस करवा ही लिया जाएगा, ठीक है, किसी न किसी बहाने से। वेट फॉर दैट टाइम। सो आई हैव टोल्ड Bangalore Tower, Victor Tango, Tango Sierra Romeo on 118.1, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? In the response, Bangalore Tower told Victor Tango, Tango Sierra Romeo, Bangalore Tower, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Reading you 5. How do you read? उसने क्या बोला? उसने बोला कि विक्टर टैंगो टैंगो सियरा रोमियो, दिस इज बैंगलोर टावर, वी आर रीडिंग यू एट 5, और आपने ये जो इंफॉर्मेशन दिया ना 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, मैं इसको बोल के भी बता रहा हूं कि आपके इनपुट को मैंने अच्छे से रिसीव किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने बोला 1 2 3 4 5, मैंने भी वही सुना 1 2 3 4 5। आपने बोला 5 4 3 2 1, मैंने भी वही सुना 5 4 3 2 1। हेंस वी आर रीडिंग यू एट 5। नाउ मैंने तो आपको 5 के स्केल पे सुना, आप मुझे कैसे सुन रहे हो? हाउ डू यू रीड? सो इन द रिस्पॉन्स वी कैन से रीडिंग यू 5 या फिर रीड यू 5, ठीक है, स्ट्रेंथ 5, विक्टर टैंगो टैंगो सियरा रोमियो, ठीक है, कि मैंने आपको 5 के स्केल पे सुना है, एंड दिस इज टैंगो सियरा रोमियो, जो कि आपके कॉल को कंफर्म कर रहा है। डन। रीडेबिलिटी चेक वाला हो गया पोर्शन कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. ठीक है, गुड। नाउ आप लोगों को डाउट नहीं है तो एक डाउट मुझे है कि आप बोलोगे कि सर ये बार बार 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ये पकाने वाला चीज क्यों यूज कर रहे हो, जब इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो हटाओ ना, क्यों यूज करना है इसको 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। सी, दिस इज जस्ट अ रैंडम सैंपल चेक। सपोज आपका फ्रेंड, कई बार क्या होता है व्हेनेवर यू आर स्कूल और कॉलेज, तो आपके कुछ फ्रेंड या कोई रिलेटिव लंबी लंबी फेंका फाकी करते हैं कि मैं यूरोप घूम के आया हूँ, मैं मुंबई घूम के आया हूँ, मैं क्या कहते हैं रामेश्वरम घूम के आया हूँ, तमिलनाडु ऊटी, कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा फेंका फाकी। तो हम लोग उससे काउंटर क्वेश्चन करते हैं ना कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम मुंबई घूम के आया तो कहाँ गया था? गेटवे ऑफ इंडिया घूमे थे तुम? तो बोलेगा हाँ। तो आप उससे काउंटर करके पूछते हो अच्छा एक बात बताओ, ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया के बाएं साइड में है या दाएं साइड में है?
लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे वाइल इन कॉलेज और स्कूल, जस्ट टू चेक कि वो सही बोल रहा है या गलत. सिमिलरली if any ATC says I am reading you at 5, ठीक है, बोल के बताइए मैंने क्या बोला था. अगर आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आई एम रीडिंग यू एट 5, तो मैंने एक रैंडम नंबर बोला है साहब, बोल के बताओ. अगर इसको बोलने में आपने मिस्टेक किया मतलब आप झूठ बोल रहे हो. ठीक है, दिस इज जस्ट अ केस कि हमने एक रैंडम नंबर पुट अप किया. अगर आप मेरे को अच्छे से सुन रहे हो तो रिपीट करो, जो मैंने बोला है रिपीट करो. ठीक है, आप क्लास में कई बार बोलते हो कि सर मैं टॉपिक समझ गया, तो टीचर पूछते हैं अच्छा समझ गए, ठीक है बताओ. कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं. सिमिलरली वी आर गिविंग अ रैंडम नंबर. इफ यू आर गेटिंग इट राइटली, गिव मी रीडबैक, बोल के बताओ. ठीक है, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग नंबर. इफ यू वांट यू कैन यूज, इफ यू डोंट वांट लीव दैट. ठीक है, नोबडी बॉदर्स अबाउट दैट. क्लियर? सो दिस इज द रीडेबिलिटी चेक from tomorrow onwards. ठीक है, be very clear. From tomorrow onwards, whenever you will join, I had suggested one thing कि you will keep one hypothetical call sign as per your name. जो भी आपको अपना, सपोज आपने एक एयरक्राफ्ट खरीदा है, तो आप उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर रखना चाहोगे, क्या कॉल साइन रखना चाहोगे, आप अपने लिए वो कॉल साइन चूज करो. और कल से डेली जब भी आप ज्वाइन करो, सबसे पहली आपकी ड्यूटी रहेगी परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक. ठीक है, मैं भी अपना कॉल साइन चेंज करके कोई ना कोई एयरपोर्ट के एटीसी के नाम से रख लूंगा. ठीक है, तो आपको सबसे पहले रीडेबिलिटी चेक करनी है डेली. कोई भी इसको बाईपास करने की कोशिश नहीं करेगा. ठीक है, और आपको शर्माना भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है. सपोज आपने 5 मिनट लेट से क्लास ज्वाइन किया, मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप जैसे ही ज्वाइन करो आप रीडेबिलिटी चेक करो, आई वॉन्ट माइंड. ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा. बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सर टॉपिक के बीच में कैसे इंटरफेयर करो, नहीं. जब भी ज्वाइन करो रीडेबिलिटी चेक करो. ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी. एंड ट्रस्ट मी, बाय द डेली प्रैक्टिस ऑफ रीडेबिलिटी चेक वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी ऑफ द थिंग्स. बहुत ज्यादा हम लोग इस चीज से सीखने वाले हैं. इफ यू विल कंटिन्यू प्रैक्टिस रीडेबिलिटी चेक फॉर अ मंथ, आपका कम्युनिकेशन इतना ज्यादा इनहेंस हो जाएगा कि मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द केस कि आप लोग ड्यूटी पे हो, आप लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो चलेगा, बट जब आप अवेलेबल हो इन होम विथ पेन एंड पेपर, ट्राई रीडेबिलिटी चेक ऑलवेज. ठीक है, अगर कोई अनवांटेड सिनेरियो है और अनफोर्सीन केस है, दैट इज एग्जेम्प्टेड. आप लोग ट्रेवल कर रहे हो तो मैं ऐसा फोर्सफुली आपको प्रेशर नहीं डालूंगा कि करना ही करना है, बट it is for your benefit. So if you have time, please do readability check daily. ठीक है, आपका फर्स्ट काम रहेगा रीडेबिलिटी चेक करना. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Clear. Okay, so till readability check we have seen ki how to perform readability check, what are the rules of 4 W's, and what is the readability skills. Now let me go to the calendar. कुछ और एक छोटा सा टॉपिक उठाता हूं so that newcomers won't get so much of problem. ठीक है, चेक हो गया. Okay, now we are going to see aeronautical phonetics. आप लोगों ने इस चीज को आई थिंक कॉलेज के टाइम पे पढ़ा होगा, या इन जनरल आप अगर एविएशन ज्वाइन करते हो तो आपको ये चीजें देखने को मिल ही जाती है. और ऐसा नहीं है कि एरोनॉटिकल फोनेटिक्स सिर्फ और सिर्फ एरोनॉटिकल से ही स्टिक है. ये वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की तरह अडॉप्ट किया गया है. जरूरी नहीं है कि सिर्फ एविएशन के लोग ही इसको यूज करते हैं, किसी भी फील्ड के लोग इसको यूज कर लेते हैं. क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो ना ओवर रेडियो नेटवर्क, यू माइट हैव फील
आज से 2-3 साल पहले जब आप कॉल करते होगे तो कॉल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी आज के टाइम पे है। आपने कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नोटिस किया होगा। जब नॉर्मल कॉल फोन होते थे, फीचर्स फोन, स्मार्टफोन नहीं होता था, या 4G 3G 5G ये सब जब नहीं था, उस टाइम पे आपके कॉल की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। बट एज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, आपके कॉल की क्वालिटी अच्छी होने लगी। बट एयरक्राफ्ट दे आर स्टिल ओवर द VHF नेटवर्क, जो कि 50-60 सालों से चला आ रहा है। तो उनका तो कॉल वैसा का ही वैसा है, उनका तो कॉल क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुआ। However, it depends on the aircraft to aircraft। कोई नया नवेला एयरक्राफ्ट है तो उनके उनके इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े अच्छे एडवांस बन गए हैं, तो थोड़ी बहुत वॉइस क्लैरिटी रहती है। बट नेटवर्क दैट दे आर यूजिंग स्टिल रेडियो टेलीफोनी नेटवर्क, तो कॉल की क्वालिटी वैसी ही है। अब आप सपोज किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो पी फॉर पपाया, ठीक है, बट बाय द एनी मीन्स वो पी को कोई बी सुन रहा है, कोई डी सुन रहा है, कोई टी सुन रहा है। इस टाइप की कंफ्यूजन हो सकती है ना। सो टू अवॉइड सच कंफ्यूजन, it is recommended to use aeronautical phonetics, and this aeronautical phonetics has been based upon the English alphabet, ठीक है, जिसमें ABCD को इनहेंस करके कोई ना कोई वर्ड के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया गया है। हम लोग बचपन में पढ़ते भी थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, लाइक दैट। सिमिलरली आपको यहाँ पे ABCD को किसी न किसी वर्ड से डेजिग्नेट कर दिया गया है, ताकि किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं आए। नहीं तो कोई बोले B, समझ लिया T, बस जाके टक्कर हो गया। सपोज आपको क्लियर किया गया कि एप्रोन से रनवे के थ्रू जाओ, एक रोड का नाम है B, दूसरे रोड का नाम है P, यहां से एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, यहां से एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, इसको बोला B, ठीक है, इसको बोला P, बट दोनों एयरक्राफ्ट ने समझा कि B बोला है, जाके दोनों एक दूसरे को जाम कर देंगे कि नहीं मुझे भी B ही बोला गया है, ये बोलेगा मुझे भी तो B ही बोला गया है। तो अवॉइड सच कंफ्यूजन्स, आप अपने एरोनॉटिकल फोनेटिक्स का यूज करो, ठीक है। और इफ somebody sometimes have contacted with customer cares, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एविएशन में कुछ बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें कॉमर्शियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, और काफी लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू ना, अपना कॉल सेंटर वाला एग्जांपल, वेयर दे हैव बीन ट्रेन्ड कि पहले सिर्फ हेलो बोलो, अगर उधर किसी मेल ने रिप्लाई किया तो बोलना हेलो सर, किसी फीमेल ने रिप्लाई किया तो बोलना हेलो मैडम। सिमिलरली अगर आपने कभी किसी कस्टमर केयर से बात किया हो और आपको अपना नाम स्पेल आउट करना पड़ा हो, या फिर आपको अपना ईमेल स्पेल आउट करना पड़ा हो, तो वो लोग भी क्रॉस कंफर्म करते हैं। अगर आप बोलोगे ना एस, तो बोलेंगे सर एस फॉर शिमला। अगर आप बोलोगे पी, तो बोलेंगे पी फॉर पटना सर। अगर आप बोलोगे एम, तो वो कंफर्म करेंगे सर इज एम फॉर मुंबई, इस टाइप से, ताकि ऐसा नहीं हो कि उसके फोनेटिक्स में वो कंफ्यूज हो जाए। आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दिस इज द एग्जांपल कि वो सिटी का नाम लेके क्रॉस चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पी को गलत सुन रहा हूं, ठीक है। आई हैड चांस टू कम्युनिकेट विथ गूगल रिप्रेजेंटेटिव वंस। एक बार मैंने गूगल में कॉल किया था, एंड दैट कॉल वेंट टू US। It was an year of 2014, 15, I guess. 15 था, 2015. I had chance to get communicate with Google representative. उस टाइम मेरे ईमेल में कोई फॉल्ट आ गया था, ठीक है। मैं तो उस टाइम एविएशन में इस चीज को उतना ज्यादा अच्छे से नहीं जानता था। स्टिल जब मैंने कॉल किया एंड ही वाज आस्किंग मी फॉर माय ईमेल, दैट टाइम फर्स्ट टाइम आई नोटिस वो हर एक लेटर को एक्सप्लेन कर करके बोल रहा था। सर इज ए फॉर अर्जेंटीना, इस टाइप से, एन फॉर सर नाइजीरिया, इस टाइप से, तो के फॉर कजाकिस्तान। सो दैट टाइम आई नोटिस कि अच्छा, हो सकता है कि उनको ईमेल लिखने में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो रहा होगा,
That's why they had explained each and every letter with the address, ताकि वो किसी भी टाइप का गलत ईमेल नोट नहीं कर लें. So this was just a call center. Look at the beauty of their training. So that thing is very useful in our aviation always. ठीक है, तो हम लोगों ने भी इंग्लिश अल्फाबेट को ए से जेड तक डिवाइड कर लिया है ओवर द फोनेटिक्स. ये चीज आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी. अदरवाइज स्क्रीन इज स्टिल, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो. एनी हाउ, इफ यू टेक एडमिशन, ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर करता रहूंगा, सॉरी कर ही दूंगा एक ही बार में, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अभी के लिए अगर आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अदरवाइज ऑल्सो इट इज अवेलेबल ऑन गूगल. ठीक है. नाउ ए स्टैंड्स फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रेवो, बी फॉर बीटा नहीं. ठीक है, मिलिट्री में बीटा भी बोल देते हैं कई बार. ठीक है, बीटा टीम, बट हेयर ब्रेवो. सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, ई फॉर एको, एफ फॉर फॉक्सट्रोट, जी फॉर गोल्फ. गामा नहीं, मिलिट्री में बोलते हैं गामा. हेयर गोल्फ. एच फॉर होटल, आई फॉर इंडिया, जे फॉर जूलियट, के फॉर किलो, एल स्टैंड्स फॉर लिमा, एम स्टैंड्स फॉर माइक, एन स्टैंड्स फॉर नवंबर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑस्कर, पी पापा, क्यू कीबेक, आर रोमियो, एस सिएरा, टी टैंगो and U uniform, V Victor, W whiskey, X X-ray, Y Yankee and Z Zulu. ठीक है, तो A से लेके Z तक ये फोनेटिक्स आपको इसी फॉर्मेट में बोलने हैं. However, आप जिन चीजों को जैसे पढ़ते हो इन योर नॉर्मल इंग्लिश, दैट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, जैसे I फॉर इंडिया, J for Juliet, P for Papa, acceptable, rather than certain key specific alphabet. जैसे कि आप ध्यान दो Q के ऊपर. Q को क्यूबेक नहीं पढ़ना है, कुछ लोग इसको क्यूबेक पढ़ते हैं, क्यूब नहीं, क्यूबेक नहीं, Q को पढ़ा जाएगा कीबेक. ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो इट इज रिटन एज क्यूबेक, स्टिल वी विल रीड इट एज कीबेक. देखो बीच में कैसे पढ़े जाएंगे, ये लिखा हुआ है, दिस इज कीबेक, चाबी वाला कीबेक, क्यूबेक नहीं. ठीक है, तो दो चार जो एक्सेप्शंस हैं मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना. क्यू स्टैंड्स फॉर कीबेक, नोट क्यूबेक. डन. जूलियट, इसको जूलियट नहीं पढ़ो. ठीक है, जूलू वाला जूलियट नहीं, जू. ठीक है, जूविस वाला जूलियट. चाहो तो आप इसको ऐसे पढ़ो, जूलियट. ठीक है, के स्टैंड्स फॉर कीबेक, जी स्टैंड्स फॉर जूलियट, एस इसको कुछ लोग पढ़ते हैं सीरा नहीं, सीरा नहीं, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं कॉमनली सीरा नहीं, सीरा नहीं पढ़ना है, सिएरा. क्या पढ़ना है? सिएरा. एस स्टैंड्स फॉर सिएरा. ठीक है, तो एक हो गया एस स्टैंड्स फॉर सिएरा, क्यू कीबेक, जे जूलियट और ई. ई को कुछ लोग पढ़ते हैं ई को. ठीक है, कुछ लोग ई को पढ़ते हैं ई को नहीं, एको. क्या पढ़ना है? एको, एको. ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एको. बस बाकी सब सेम चलेगा. बस तीन चीजों पे अच्छे से ध्यान रखो, एक एको, दूसरा कीबेक और एस फॉर सिएरा. जूलियट एक बार को चल जाएगा, उतना ज्यादा पता नहीं चलता है उसमें. कीबेक, सिएरा एंड एको. ई को नहीं बोलना है, ना ही क्यूबेक बोलना है और ना ही सीरा बोलना है, बोलना है सिएरा. ठीक है, आप देख सकते हो, हियर यू गेट एब्रिविएशंस एज वेल. सिएरा, कीबेक एंड एको. clear to all? Yeah, clear. Yes, ठीक sir. है. Now apart from the alphabets, we need to read certain digits also. ठीक है, 0 से लेके 9 तक हमको नंबर पढ़ने पड़ सकते हैं. That time
whatever you are reading from 0 to 9 as a digit, जैसा पढ़ते हो वैसा ही पढ़ो, एक्सेप्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, 9 को पढ़ना है नाइनर, ठीक है, 9 को पढ़ना है नाइनर, बाकी आप 1 2 3 4 5 जैसा पढ़ते हो वैसा ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर आप लोग पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है WUN, तो क्या 1 को उन पढ़ेंगे? बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना ही आइकाओ इसको बोलता है उन पढ़ने के लिए, और ना ही किसी कम्युनिकेशन में इसको उन पढ़ा जाता है। हालांकि आई हैव टेकन फीडबैक कि किसी किसी इंस्ट्रक्टर ने किसी किसी स्टूडेंट को बता के रखा है, बहुत सारे कोचिंग है इन द मार्केट, सो दे हैव टोल्ड कि इसको उन पढ़ो, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग प्रैक्टिस, उन नहीं पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। ये उन कंट्रीज लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ देते हैं, साउथ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। आप लोगों ने उनका इंग्लिश कभी सुना होगा ना, आपको बहुत ज्यादा एक तरह से कह ले तो हंसी भी आएगी, प्लस उन लोगों का इंग्लिश डिफरेंट है। अगर उनको बोलोगे ना कि ONE 1 पढ़ दे, तो वो उसको 1 नहीं पढ़ेंगे, वो बोलेंगे ओने, क्योंकि उनकी इंग्लिश ऐसी डेवलप हुई है, उनके एक्सेंट में है, वो इसको पढ़ देंगे ओने, इसको बोल देंगे टूओ, ठीक है, टूओ, ओने, जेरो, इस टाइप से वो लोग पढ़ देंगे, ठीक है, इसको पढ़ देंगे फुओर। तो जिस हेल्प करने के लिए गया उल्टा उल्टा ही पढ़ गया, उससे अच्छा रहता है कि उसको लिख देते भाई 1 पढ़ लो, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन पीपल, मिडिल ईस्ट पीपल, दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स व्हाइल रीडिंग दिस, ओने, फुओर, टूओ, इस टाइप से वो लोग पढ़ देंगे। तो उनके लिए बनाया गया है WUN, उसको ये लोग पढ़ेंगे 1, ठीक है, उसको वो पढ़ेंगे 1 2, ठीक है, 2 के बदले वो पढ़ देंगे 2, ठीक है, 4, फुओर नहीं पढ़ना है इसलिए वो पढ़ देंगे 4। तो सर्टेन एग्जांपल्स आर देयर, कुछ लोग इसका बेसिक्स नहीं जानते हैं तो बोल देते हैं कि उन बोला करो, नहीं, उन इज रॉन्ग प्रैक्टिस, सिंपली बोलो 1, ठीक है। तो 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, डन। और 9 को पढ़ना है नाइनर, बस बाकी जैसा पढ़ते हो वैसा ही पढ़ दो। हाउएवर इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, आपको थोड़ा और अच्छे से बोलना है, तो अगर आप चाहो तो 5, ठीक है, 5 हमने पढ़ा है ना स्पेलिंग, FIVE 5, तो आप चाहो तो 5 को पढ़ो 5, ठीक है, F बोलो, ये ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो, नहीं अगर 5 भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 को पढ़ना है 5 अगर चाहो तो। और 3, हमने 3 का स्पेलिंग पढ़ा है THREE, तो इस 3 को अगर आप 3 पढ़ पाते हो, त्रिकोण वाला 3, सो दैट इज बेटर, पेड़ वाला ट्री नहीं, 3, अगर आप इसको 3 पढ़ पाते हो बहुत अच्छे, नहीं पढ़ पाए बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, 1 से 8 तक सेम पढ़ो, 9 को नाइनर पढ़ दो बस, बाकी सारा लॉजिक इसके सामने फेल है। कोई कुछ भी बोल ले, आप 1 2 बोलो, हमेशा एक्सेप्टेबल है। क्लियर? So this is the reading techniques of numbers and digits. Is that clear to all? Yes, sir. ठीक है. So these were the reading techniques of alphabets and digits. बेसिक चीजों पे, एक दो चीजों पे ध्यान रखना है। क्या? एक आएगा आपका E echo, S Sierra, Q Quebec, एंड नंबर में 9 के बदले बोलना है नाइनर, दैट्स ऑल, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। सो दीज आर द रीडिंग टेक्निक्स ऑफ फोनेटिक्स, ये चीजें आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो। एनी हाउ वंस यू टेक एडमिशन मैं ये सारा शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर टुडे।
हम लोग ज्यादा टॉपिक कवर नहीं करते हैं बिकॉज आई एम ओपन टू ऑल टिल 10th ऑफ जुलाई। ठीक है, 2 दिन और है, कल परसों और वेट कर लेते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा लोड नहीं पढ़ने पे। ऐसा नहीं हो कि एक वास्ट सिलेबस खत्म हो जाए बाद में उसके पल्ले ही नहीं पढ़े। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिजर्व रख रहा हूँ टिल 10th ऑफ जुलाई। ठीक है, फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, कल परसों 2 दिन और टाइम है। परसों के बाद से स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू एज पर आवर स्टडी गोल्स। जो हमारा एग्जाम सिलेबस पैटर्न है उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 दिन और रिलैक्स करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं। कल के बाद से ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एंड देन विल मूव ऑन अ गुड स्पीड एट आवर एज पर आवर सिलेबस फ्रॉम 10th जुलाई ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग फॉर ऑल। अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का क्वेरी, किसी भी टाइप का डाउट हो रिगार्डिंग एडमिशंस और एनीथिंग, प्लीज गेट इन टच विद डीएम। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। डन, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you tomorrow 9 o'clock same time, and tomorrow onwards readability check practice करनी है as a mandatory rule for the class. Done? ठीक है, चलो, that's all for today. We'll see you tomorrow. Bye bye, have a good night. Good night. Good night.